اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم غزوہ احد کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ کے اس چیپٹر کو مکمل کیا. اس میں ہم نے جو اینڈ ریزلٹ دیکھا وہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، مگر شکست میں بھی ایک خیر تھی مسلمانوں کے لیے، اور وہ خیر کیا تھی کہ ان کو یہ معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری خیر کی بات اس میں یہ تھی کہ منافقین کا اصل روپ ان کے سامنے آ گیا کہ کون کون منافق تھے. اس سے پہلے آج تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہیں اور جب وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اب پتہ چلا کہ ان کی ریالٹی کیا تھی. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین جس ایجنڈا کو لے کر آئے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقصد کیا تھا جنگ احد کا، ان میں سے ان کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا مقصد پورا ہوا، اسی طرح نہ ہی ان کا یہ مقصد تھا کہ ٹریڈ راؤٹ کھولا جائے، وہ مقصد پورا نہیں ہوا ان کا. اور کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ ایسا ان کا نہیں نکلا جس سے کہ مسلمانوں کو کوئی بہت بڑا ایسا نقصان دیا جائے، تو وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور بلکہ کیا ہوا کہ میدان جنگ سے بھاگے کون؟ کفار. مسلمان تو نہیں بھاگے، مسلمان تو ہمراہ الاسد میں بھی جا کے 3 دن تک ٹھہرے رہے اور ان کا ویٹ کرتے رہے اور یہ نہیں آئے. تو ہم نے یہ دیکھا، مگر اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمانوں کے جو ایک روب بیٹھا تھا کافروں کے دلوں میں جنگ بدر کے بعد، وہ روب اب جاتا رہا. اب وہ بات نہیں رہی. اب کافر جو تھے، جو ارد گرد کے قبائل کے تھے، وہ بہت ہی یعنی اس چیز کی طرف شیر ہو گئے کہ اب تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک طرح سے انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے شکست کھائی ہے. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو اس جنگ کی وجہ سے کافی ایک نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ دوسرے قبائل جری ہو گئے. آج ہم انشاءاللہ تعالی حادثے اور غزوات یہ چیپٹر پڑھیں گے. پیج نمبر 217 تجلیات نبوت. اب غزوہ احد کے بعد کیا ہوا؟ احد میں مسلمانوں کو جو ذک اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے. دشمن جری ہو گئے، یعنی دشمنوں میں اور زیادہ تیزی آ گئی، وہ اور زیادہ اس چیز کے اندر شیر ہو گئے کہ اب مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اپوز کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھل کر آ گئے. اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے. کئی ایسے واقعات پیش آ گئے. یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ 2 واقعات کا ذکر آتا ہے، ایک رجی کا حادثہ اور ایک بئر معونہ کا واقعہ. یہ 2 واقعات آتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں گی. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ احد کب ہوئی تھی؟ جنگ احد رمضان میں تو بدر ہوئی تھی، شوال میں ہوئی تھی. اور کون سا ہجری ایئر کون سا تھا؟ 2 تو بدر کا تھا. یہ آپ لوگ ایسے ایک ٹائم لائن بنا لیں. میں اب آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ کیونکہ ہم اتنے سارے واقعات پڑھیں گے یہ سارے مکس اپ ہو جائیں گے، تو اب آپ لوگ نا صرف پوائنٹس میں ان کو لکھیں گے، اور ایسے پوائنٹس میں لکھیں گے جیسے کہ فار ایگزامپل کہ مثلا رجی کا حادثہ اگر آپ لکھیں یا رجی کا واقعہ اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کے نیچے آپ پوائنٹس میں ساری چیزیں لکھیں. پوائنٹس میں کیسے کہ مثلا کس کے ساتھ لڑائی ہوئی، یا مسلمانوں کی طرف سے لیڈر کون تھا، شہید کتنے لوگ ہوئے، کافروں کا کیا انجام ہوا. یہ ساری چیزوں کو پوائنٹس میں آپ لکھیں. جیسے مثلا آپ اوپر اگر لکھتے ہیں رجی کا واقعہ، تو اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گی ہوا کیا واقعہ. مسلمان کتنے تھے، تعداد جیسے آپ نے اوپر لکھی، تو مسلمان اتنے، کفار اتنے، کون سی جگہ کیا تھی، وجہ کیا تھی. اس طرح سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پوائنٹس میں لکھیں، کیونکہ یہ سب مکس اپ اگر ہو گیا نا تو یہ میں اسی لیے جب آپ کو پوچھتی ہوں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. اور یہاں پہ لکھیں گے آپ ڈیٹ کیا تھی. اب ہم
2 हिजरी पढ़ चुके हैं, 2 हिजरी का बहुत बड़ा वाकया सबसे बड़ा। उसके अलावा हमने छोटे छोटे और चीजें भी पढ़े थे, कौन से सरियात हुए, कौन से और क्या हुआ। इसी तरह जंगे ओहद के अंदर जो खास खास चीजें थी उनको इस तरह से आप पॉइंट्स में लिखें। तो अब ओहद का वाकया कब हुआ? शव्वाल 3 हिजरी, ठीक है। शव्वाल के बाद क्या आता है? ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ठीक है। मुहर्रम में क्या हुआ था, पहले हम उसकी तरफ जाते हैं, उसके बाद ये वाकयात पढ़ते हैं, क्योंकि ये सफर के वाकयात हैं। मुहर्रम में एक वाकया हुआ, अब ये बुक में नहीं है इसलिए आप लोग नोट कर लें इसको। अच्छा, मुहर्रम 4 हिजरी में, मुहर्रम 4 हिजरी में सरिया अबू सलेमा, ये लिखे सरिया अबू सलेमा हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल जाता था, इतने जासूस फैले हुए थे कि पता चल जाए कि कहीं कोई ऐसी चीज होने वाली है, कोई हमला होने वाला है मुसलमानों के ऊपर, तो उसके बारे में पहले ही पता चला लिया करते थे। तो उस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक कबीला है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला है, तो फर्स्ट मुहर्रम 4 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली थी, खुवैलिद के बेटे तुलैहा और सलेमा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे तो मैंने रजी का वाक्य लिख दिया ना, आप लिखें सरिया बनु सलेमा, सरिया बनु सलेमा। क्यों इसका नाम सरिया बनु सलेमा था? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलेमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलेमा को बुलाया था, और अबू सलेमा को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीर बनाया था। उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक जमात भेजी थी, और उन लोगों की तरफ आपको क्या पता चला कि कुफार में 2 भाई थे, तुलैहा और सलेमा। ये कुफार में थे 2 भाई, और मुसलमानों में लीडर कौन थे? अबू सलेमा। अबू सलेमा पता है ना कौन है? अच्छा जी, इस तरह आपका ना बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि एक एक चीज अंदर मिक्सअप हुई भी है, इस तरह से पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलेमा को बुलाया और उनको इस मुहिम के लिए 150 मुसलमानों के साथ रवाना किया कि जाके इनकी खबर लें। तो वहां पे उन्होंने इनका मुकाबला किया। तो लेहा जो था, जिसके मैंने लिखा हुआ कि ये कुफार में से ये लीडर था, ये बाद में मुसलमान हो गया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये मुर्तद हो गया था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा कि जाए इसका जो है ना इसकी खबर लें। तो ये भाग गया शाम की तरफ, और वहां जाके इसने दोबारा तौबा की और फिर से मुसलमान हो गए, और फिर इन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया, और एक जंग में ये शहीद हुए थे 21वीं हिजरी। सुभान अल्लाह, ये पढ़ के मुझे इस कदर वो हुआ कि देखो हम बहुत जल्दी फैसले कर देते हैं, लेकिन इंसान ऐसे ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद आ गई, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि कोई पता नहीं किस वक्त इंसान का दिल किस तरह से पलट जाए और वो किस तरफ हो जाए। ये कितनी बड़ी बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तद हो जाना, और इनका भाई वो मुसलमान ही नहीं हुआ, वो नहीं मुसलमान हुआ। तो इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कौन क्या, ये अब सहाबी रसूल से मुर्तद एंड अगेन फिर मुसलमान। तो ये अब आप लोगों ने लिख लिया सरिया बनु सलेमा, इसमें कितने लोग शरीक थे, क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और सरिया हुआ, वो भी मुहर्रम में हुआ। ये सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस था, सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस, अलिफ नून यासीन जैसे अनीस लिखते हैं। और इस सरिये के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हुजैल का एक बड़ा कबीला था। बैकग्राउंड थोड़ी ये रजी, ये जो हम वाकया आगे पढ़ने वाले हैं ना, इसका भी ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। पहले बात यहां से शुरू हुई है। सरिया क्या है? अब्दुल्ला बिन उनैस, शाबाश।
ये नाम थोड़े थोड़े आपको याद रखने चाहिए, इनको हेडिंग्स दे दें, इनको हाईलाइट कर लें। और आपने जब नोट्स लिखे होंगे, नोट्स एक तरफ होने चाहिए, लेकिन एक रोड मैप टाइप चीज होती है, उस तरह से बना लें, ठीक है। तो ये हुजैल का एक बड़ा कबीला था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वहां पे खालिद बिन हुसैल ने एक लश्कर तैयार कर रखा है, मदीने पे हमला करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है, ये उनका सरदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया और फरमाया, मुझे ये इत्तला मिली है कि नबीह का पोता खालिद बिन सुफियान लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इसका मकसद मुझसे जंग करना है। इस वक्त वो औराना के मकाम पर मौजूद है, इस तक पहुंचो और इसको कत्ल कर दो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको फरमाया? अब्दुल्ला बिन उनैस को। अब आप देखिए ये सारे लोग क्यों सर उठा रहे थे, क्या सोचते हैं आप? अब इनको क्या याद आ गया था एकदम, क्योंकि जब इन्होंने ओहद के अंदर देखा ना कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, तो अब इनको एकदम वो मिल गई, शय मिल गई कि अब हम भी हमला करते हैं। तो कभी कोई कहीं सर उठा रहा है, कभी कोई कहीं सर उठा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने यानी अलर्ट रहते थे कि हर वक्त ये देखिए, सोचे कि कितना खतरा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, शव्वाल के अंदर ओहद हुई है, कितने बड़े सदमे से गुजरे मुसलमान। शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा सिर्फ हुई है, और मुहर्रम के अंदर ये सारे सर उठाने शुरू हो गए। कोई कहीं जमा हो रहा है, कोई कहीं जमा हो रहा है, आए दिन एक खबर आ रही। कितनी टर्बुलेंस थी उनकी लाइफ, कोई चैन नहीं था कि वो मजे से आके बैठ गए हिजरत करके, तो अब बहुत मजे। तो अब्दुल्ला बिन उनैस ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि वो फलां बंदा ऐसा कर रहा है, तो तुम जाओ और इसका काम खत्म करो। और ये औरना के मकाम पे मौजूद है। औरना एक जगह है अराफात के करीब, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इसकी कोई निशानी बता दे। अब जाहिर है अब्दुल्ला बिन उनैस ने उसको देखा थोड़ी हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा है कि जिसको देख के दहशत तारी हो जाती है। यानी वो किस तरह का आदमी है कि वो शैतानी है, जैसे चेहरा होता है ना एक, कि उसको देखकर इंसान के ऊपर दहशत तारी हो जाती है। तो अब्दुल्ला बिन उनैस फरमाते हैं कि मुझे कोई किसी मर्द को देख के दहशत तारी नहीं होती, मैं किसी से नहीं मरऊब होता। तो खैर फरमाया, तुम्हें उसको देख के शैतान याद आ जाएगा, ऐसा उसका चेहरा। तो ये चले गए, और जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और आइन रा नून और ताय मरबूता के साथ, और के मकाम पे जब पहुंचे तो कहते हैं कि मैंने वहां पे जाके उस आदमी को देखा, और वाकई उसको देखकर मुझ पे दहशत तारी हो गई। तो कहते हैं अब मैंने अपनी तलवार ली और मैं यानी उसके वहां पे करीब गया। जब मैं इसके पास पहुंचा तो कजावे इसकी ऊंटनियों पर रखे जाने के लिए तैयार थे, जिनमें उसकी औरतें बैठी थी। कूच होने वाला था। उस वक्त असर की नमाज का वक्त हो चला था। यहाँ पे असर की नमाज लिखा हुआ है, लेकिन बाज और किताबों में जोहर की नमाज है। बाहर कैफ नमाज का वक्त था, और इनको ये था कि अगर मैं इसकी तरफ गया, ये ना हो कि मेरी नमाज चली जाए। और ये भी एक बात आती है कि ये जब निकलने लगे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि मैं कुछ खिलाफे हकीकत बात कर सकता हूँ जो रियलिटी से हट के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दी थी। एनी हाउ, अब जब इन्होंने ये सोचा कि मेरी नमाज ना चली जाए, तो कहते हैं मैंने जब खालिद बिन सुफियान को देखा तो उसे उसी तरह पाया जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बताया था। अब चूंकि मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं ये ना हो कि मेरे और इसके दरमियान कशमकश तूल पकड़ जाए और उसमें मेरी नमाज रह जाए, तो मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। साथ चल रहे हैं और साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं सर के इशारे से रुकू और सजदे कर रहा था। और बाद में ये फर्स्ट टाइम है तारीख में कि किसी ने ऐसे नमाज पढ़ी। बाद में यही सलातुल खौफ का एक तरीका है, ये एक तरीका बन गया कि यानी अगर इतना खौफ हो तो आपने ये नहीं देखना किस तरफ डायरेक्शन है, क्या है, जहां है चलते चलते पढ़ने। मगर ये इसमें नहीं है कि मैं ड्राइविंग कर रही हूं तो मैं कहूँ अब मैं गाड़ी रोक नहीं सकती तो मैं अब ऐसी नमाज, वो नहीं। सलातुल खौफ, इतना ज्यादा जब खौफ हो, ऐसी बात हो, तो फिर आप पढ़ सकते। तो कहते हैं कि जब मैं उस तक पहुंच गया तो वो मुझे देख के पूछने लगा कौन हो तुम। मैंने कहा, अब चूंकि इन्होंने इजाजत ली हुई है, मैंने कहा अरब का एक आदमी हूं, और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप उस शख्स के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों को जमा कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूं।
उस शख्स मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ लड़ाई के लिए मुझे पता चला है कि आप लोगों को जमा कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ मिलके उनके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के वो कहने लगा हाँ हाँ ये मैं ही हूं जो ये सब कर रहा हूँ। तो अब कंफर्म हो गया कि ये वही आदमी है। अब मैं इसके साथ साथ चलने लगा, हत्ता कि जब मैंने देखा कि अब वो मेरी रीच में है, दस्तरस में आ गया, तो मैंने मौका पाकर तलवार का वार किया और उसको कत्ल कर डाला। फिर मैं निकल खड़ा हुआ और उसे इस हाल में छोड़ा कि कजावों में बैठी उसकी औरतें उसकी लाश पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी, यानी कंफर्म हो गया कि ये अब दुनिया में नहीं। फिर मैं मंजिलें तय करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया अफलहल वजहु, चेहरा कामयाबी पाके आया है। और फिर सबसे प्यारी बात जो इन सहाबी के साथ है, सिर्फ कहते मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैंने इसको कत्ल कर डाला है, आपने फरमाया तूने सच कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खड़े हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए और बाहर आकर मुझे एक लाठी अता फरमाई, ठीक है, और कहा ए उनैस के बेटे अब्दुल्ला, इसको अपने पास संभाल के रखना। ये असा लेकर जब मैं लोगों के पास आया तो सहाबा ने पूछा इस असा का मतलब क्या है, यानी ये क्यों दिया तुम्हें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो मैंने जवाब दिया ये असा मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और हुक्म दिया कि इसको अपने पास संभाल के रखना। तो लोगों ने कहा मतलब तुम जाके पूछो ना कि क्यों आपने दिया। तो वो वापस चले गए और जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने ये असा मुझे किस मकसद के लिए दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लाठी मेरे और तेरे दरमियान क़यामत के दिन एक निशानी होगी। बेशक उस रोज लोगों में से बहुत थोड़े लोग होंगे जो टेक लगाए हुए होंगे, लोगों के पास कोई सहारा नहीं होगा उस दिन। तो ये लाठी होगी तुम्हारे पास कि तुम इससे उस दिन सहारा लोगे। तो कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपनी तलवार के साथ इस असा को भी चिमटा के रखा और सारी जिंदगी इन्होंने दिन हो या रात, अमन हो या जंग, या सफर हो या घर में हो, हर वक्त इस असा को अपने पास रखते थे। और जब मौत का वक्त करीब आया तो वसीयत की कि मेरी कब्र में इसको मेरे साथ दफना दे। तो इनके साथ इस असा को कब्र में दफनाया गया। ये रिवायत मुस्नद अहमद में भी है और इब्ने हब्बान में भी है, सही इब्ने खुजैमा में भी है, मुस्नद अबी आला में भी है, सब में ये रिवायत है। अल्लाह अकबर। तो ये थोड़ा सा वाकया था उनके बारे में। अब ये जो हम आगे पढ़ने लगे हैं रजी का हादसा, ये जो मैंने अभी आपको वाकया बताया कौन सा वाकया, क्या इसको कहेंगे? सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस। हाँ, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये है बैकग्राउंड। इसके बाद ये रजी का हादसा हुआ और ये कब हुआ? मुहर्रम के बाद क्या आता है? सफर। नेक्स्ट मंथ ही ये हुआ कि जब उनके कबीले वालों ने देखा कि ये तो हमारा सरदार मारा गया, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंतकाम की ठानी। और इस इंतकाम के लिए उन्होंने जो एक प्लानिंग की, इस कदर बुरी प्लानिंग की। और ये याद रखिए ये रजी और बैरे माउना का जो वाकया है हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ये दोनों एक ही मंथ में हुए। और ये दो ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतनी तकलीफ पहुंचाई कि इससे ज्यादा यानी एक समझ लें कि बड़ा मैसेकर, खून रेजी ऐसे नहीं हुई थी। जंगों के अंदर तो ठीक है जो लोग शहीद होते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे इन वाकयात के अंदर हुआ ये नहीं कभी हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद तकलीफ हुई। बाज जगह पे आता है कि बैरे मऊना का वाकया पहले हुआ था, बाज पे आता है कि मगर दोनों एक ही मंथ में हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों वाकयात की इतला एक ही रात में पहुंचाई गई। सोचे कितना सदमा होगा। आप जब ये वाकयात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ दे ये बात थी। तो रजी का हादसा का पहले इसका देखते हैं कि जब उनको पता चला कि हमारा तो सरदार मारा गया, तो हुज़ैल कबीले के लोगों ने एक प्लानिंग की। उन्होंने अजल कबीला, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ, और कारा, ये दो कबीले हैं, ट्राइब्स, सब ट्राइब्स, उनको अपने साथ मिला लिया कुछ माल वगैरह देकर, और उनको तैयार किया कि मुसलमानों के पास जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और झूठ मूठ का इस्लाम जाहिर करें। और क्या प्लानिंग थी वो हम देखते हैं, फिर यहाँ पे बुक में देखें। रजी का हादसा सफर 4 हिजरी। अजल और कारा कबाइल के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जिक्र किया कि इनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है।
इस्लाम चाहते हैं ये, लिहाजा आप इन्हें दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेज दें। क्या करें कि अपने कुछ माहिर लोग हमारे साथ भेजें जो हमारे पास आके हमारे कबीले में दीन सिखाएं, हमें इस्लाम से बड़ी, हम मुसलमान हो गए हैं तो अब हमें दीन सिखाने के लिए कोई चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को इसके लिए तैयार किया। और ये 10 सहाबा कौन है? जो बड़े हाफिज, बड़े कारी, बड़े बड़े मुबल्लिगीन, सुफा वालों में से, प्यारे स्टूडेंट्स कुरान के, क्योंकि जाहिर है सिखाने के लिए जा रहे थे और सहाबा कराम को शौक भी बहुत था कि दीन को आगे सिखाएं, फैलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस्ट वंस चूज किए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन साबित की अमारत में, यानी उनको अमीर बनाया और इस 10 सहाबा को रवाना कर दिया। आसिम बिन साबित कौन है? ये चीजें आपको भूल जाएंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को लिखें जरूर। ये हजरत उमर के बेटे आसिम के नाना है। यानी क्या मतलब हुआ? हजरत उमर ने एक औरत से शादी की थी जिसके वालिद हैं ये। अच्छा, अब क्या हुआ? यानी ससुर हो गए हजरत उमर के। तो आसिम बिन साबित ये भी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत इल्म वाले थे। जब ये लोग रजी पहुंचे तो उन्होंने इनके साथ गद्दारी की और कबीला हुजैल की एक शाख बनु लहयान को इन पर चढ़ा लाए। यानी जब ये लोग रजी के मकाम पे पहुंचे, अब रजी क्या है? ये रजी जो है एक कुआं था, उसी से ये वाकया, क्योंकि वहां पे पेश आया था, तो उसी से ये वाकया रजी का वाकया कहलाता है। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने इनके साथ गद्दारी की। कैसे गद्दारी की? कि अब वो कबीला हुजैल, तो कबीला हुजैल कौन सा था? जिससे ये खालिद बिन सुफियान बिलोंग करता था। तो उसकी एक शाह बनु लहयान को इन पर चढ़ा लाए। अब उनके तकरीबन 100 तीरंदाजों ने उन्हें एक टीले पर जा घेरा। कहां ये 10 लोग और कहां वहां से एकदम 100 आ गए। अब कोई मैच नहीं था। अब उस वक्त जब 100 तीरंदाज आ गए और हजरत आसिम बिन साबित जो हैं उनको और उनके साथियों को महसूस हुआ कि उनका ये पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन एक पहाड़ी पे जाके पनाह ले ली और बनु लहयान ने यहाँ पे आके घेराव कर लिया, घेर लिया इनको और कहने लगे नीचे उतर आओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये हमारा वादा है तुमसे कि हम तुम में से किसी को कत्ल नहीं करेंगे। तो इस पर हजरत आसिम बिन साबित ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो किसी काफिर का जिम्मा कबूल नहीं करता, कि इनकी जो बात है ना मैं नहीं मानता, तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह हमारे नबी को हमारे हालात से आगाह कर देना। वो फोर्सी कर रहे थे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर अहदो पैमान दिया कि अगर वो उतर आए तो उन्हें कत्ल ना करेंगे। अब ये कौन अहदो पैमान दे रहे हैं? वो जो काफिर बनु लहयान के जो लोग हैं, कबीला हुजैल की एक शाख है, वो लोग अब काफिर कह रहे हैं कि आप लोग नीचे आ जाओ, हम कुछ नहीं कहते आपको। अब आसिम ने उतरने से इनकार कर दिया। और इनकी भी बहुत एक प्यारी बात है, अभी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और रुफका समेत उनसे जंग शुरू कर दी। अब ये लोग, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से नहीं उतरेंगे, हम जंग करेंगे। और इस तरह इन्होंने जंग की कि जो आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने तीरों से भी जंग की। तीर खत्म हो गए तो नेजे लेके उनसे जंग की। नेजा भी टूट गया तो उसके बाद तलवार ले ली, तलवार तक टेढ़ी हो गई। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैंने तेरे दीन की हिफाजत की है दिन में, तू रात में मेरे जिस्म की हिफाजत करना। क्यों उन्होंने ये दुआ की, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि उहद में इन्होंने एक औरत सुलैफा बिनते साद के शौहर को मारा था और उस औरत ने कहा था कसम खा के कि जो आसिम की खोपड़ी लेकर आएगा मैं उसको 100 ऊंट इनाम दूंगी। कि मैं उस वक्त तक मरूंगी नहीं जब तक उसकी खोपड़ी में शराब ना पी लूं। यानी कैसी वो औरतें थी, जैसे हिंद ने कसम खाई थी ना, इस तरह इस औरत ने कसम खाई कि मैं, अब क्या था, 100 ऊंट का इनाम था इनके ऊपर। तो इन्होंने कहा या अल्लाह मेरे जिस्म की हिफाजत फरमाना कि ये काफिरों के पास ना चला जाए। कुरान सिखाने गए थे तो ये ध्यान भी इनके साथ थे।
कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो हथियार होंगे वो, अब आगे बात आएगी कि अगले वाले जो थे उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ थे, जो थोड़े बहुत अपने साथ ही लोग रखते थे, उसके अलावा तो कोई हथियार नहीं थे ऐसे कि जो है ना बहुत बड़ी कोई जंग करते। इसीलिए तो उसके बाद क्या हुआ कि ये शहीद हो गए और इनके साथ 7 और लोग भी मारे गए, जो 7 दूसरे लोग थे, यानी ये सब बमा इनके ये शहीद हो गए। अच्छा, ये बात यहाँ पे हमारी बुक में तो लिखा हुआ कि कुरैश ने भेजा था, क्योंकि कुरैश में से वो औरत थी, मगर बाज़ जगह पे ये आता है कि जब लड़ाई खत्म हुई तो इसी ये जो काफिर लोग थे हुजैल कबीले के, ये तो इनको भी तो पता था कि इसके ऊपर इतना हेड मनी इस तरह है, इतने ऊंट है इसके सर की कीमत, तो वो चाह रहे थे कि इनकी खोपड़ी हथिया लें। और इन्होंने अल्लाह से दुआ की हुई है कि अल्लाह, मैंने दिन में तेरे दीन की हिफाजत की, तू रात में मेरे जिस्म की हिफाजत करनी। तो जब ये शहीद हो गए तो वो लोग बढ़े इनकी लाश की तरफ, जब जंग वगैरह खत्म हो गई। अब हर कोई चाहता था कि इनकी लाश तक मैं पहुंच जाऊं और मैं ले लूं, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो अल्लाह ताला के लश्करों को वही जानने वाला, और अल्लाह अपने प्यारों को कभी अकेला नहीं छोड़। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का झुंड भेज दिया जो उनकी बॉडी की जैसे हिफाजत कर रही हैं, कि जो उस तरफ को आता था उसको भंभोड़ देती। उन लोगों ने कहा कि अब क्या करें हम, तो उन्होंने कहा, मशवरा किया आपस में, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बातें बताती कि उन्होंने मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शहद की मक्खियां कितनी देर रहेंगी, हम ऐसा करते हैं, हम शाम तक इंतजार करते हैं, सूरज ढल जाएगा, जब चली जाएंगी तो फिर हम ले लेंगे राज को। जब सूरज ढला तो उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एक पानी का रेला आया, कहां से आया ये पता नहीं, ना कोई बारिश ना वहां पे कोई दरिया, वो पानी का रेला आया उस लाश की तरफ और उसको बहा के ले गया, और लोगों को आज तक नहीं मालूम कि उनकी बॉडी कहां है, उनकी बॉडी कहां है, लोगों को आज तक नहीं मालूम कि वो पानी कहां ले गया। मैं एंड में देती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तो इस तरह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है अपने जो प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकले थे, अल्लाह ने कोई ऐसे थोड़ी उनको छोड़ देना था। तो ये 7 इनके साथ शहीद हो गए और 3 बाकी रहे। कुफार ने फिर वही ऐदो पैमान किया और उन्होंने कहा कि आप लोग नीचे उतर आए तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चुनाचे वो तीनों उतर आए, मगर कुफार ने उनसे बदअहदी की और इन्हें बांध लिया। अब कौन कौन वो 3 थे, ये आगे नाम आ रहे हैं उनके। इस पर एक ने कहा, एक कौन थे, अब्दुल्ला बिन तारिक, जब उन नीचे आए तो उन्होंने इनकी कमानें तोड़ के और उसी की वो जो थी तनी रस्सी, उसी से इनको जोर से इस तरह से बांध दिया जानवरों की तरह, और उनको फिर कहा कि कैदियों की तरह चलो तुम, तो तुमने तो अभी कहा था कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन तारिक, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी पहली बदअहदी है, तुमने तो अभी अहद किया था कि हम कुछ नहीं कहेंगे, और ये तुम्हारी पहली बदअहदी है। तो जब वो नहीं माने, चलने पे तैयार नहीं हुए, तो काफरों ने उनको भी वहां पे शहीद कर दिया। अब कितने रह गए, सिर्फ 2। अब देखते हैं, कुफार ने उसे कत्ल कर दिया, ये कौन थे, अब्दुल्ला बिन तारिक, और बाकी 2 को मक्का ले जाकर बेच दिया। क्यों मक्का ले जाकर बेच दिया, क्योंकि वहां देखते हैं ना उनका जो अंजाम, कौन उनकी सबसे भारी कीमत देगा, कुरैश। क्यों, उनके जो मरे थे उसके इंतकाम में हम इनको खरीदेंगे, जितनी मर्जी कीमत मांगो हम, क्योंकि आगे देखें मक्का ले जाकर बेच दिया। क्यों, ये आगे पता चलता है। ये दोनों खुबैब बिन अदी और जैद बिन दसिना थे। खुबैब ने जंगे बदर में हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया था, तो उसकी औलाद ने कहा हमें जितना भी माल देना पड़े हम इसको खरीदेंगे। खरीदेंगे इसलिए नहीं कि प्यार से रखेंगे, ताकि उसके बाद ऐसी बेदर्दी से मारें। लिहाजा इनको कुछ अरसे तक कैद रखा गया, फिर तनाईम ले जाकर कत्ल कर दिया गया। ठीक है, तो पहला वाकया मैं आपको हजरत खुबैब बिन अदी का सुनाना चाहती हूँ, सईद बिन आमिर की जुबानी।
इन्होंने एक दुआ की थी अल्लाह ताला से, और ये दुआ इन अशार में है, ये पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको बताती हूँ। उन्होंने कत्ल से पहले 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर इन पर बदुआ की, फिर चंद आशार कहे, जिनमें 2 ये हैं, जिनका तर्जुमा ये है, मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होता हूं, और ये तो अल्लाह की जात के लिए है, अगर वो चाहे तो बोटी बोटी किए हुए आज़ा के जोड़ जोड़ में बरकत डाल दे। यानी मैं किस तरफ मरता हूं, मैं कैसे मरता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि अल्लाह के लिए मैं जान दे। मेरी बोटी बोटी भी कर दोगे तो अल्लाह चाहे तो एक बोटी बोटी में भी बरकत डाल दे। बरकत क्या होती है? खैर डाल दे। इसमें से भी लोगों के लिए खैर खैर निकला है, और वाकई वो खैर निकली कि हजरत सईद बिन आमिर वो बयान करते हैं इस वाक़े को। वो काफिर थे, बाद में तो सहाबी रसूल बने, वो काफिर थे, और उस वक्त वो भी मकाम तनईम की तरफ जा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि चल के देखा जाए कि एक सहाबी रसूल खुबैब बिन अदी को कैसे मारा जाता है। और कहते हैं ये जवान थे उस वक्त, कहते हैं कि लोगों के कंधे फलांग तवा में अबू सुफियान और सुफवान बिन उमैया ऐसे सरदारों के बराबर जाके खड़ा हो गया। वहां उन दोनों के अलावा और भी कई बड़े बड़े सरदार थे जो बैठे हुए थे। यानी ऐसा था कि उन्होंने तनीम के मुकाम पे जैसे कि मेला सा नहीं लगा देते, कोई एग्जीबिशन या शो है, एक शो चलने लगा किस चीज का, कि सहाबी रसूल को कत्ल किया जाए, और लोग इस कदर जोश में, और सारे लोग वहां पे जमा है। क्यों जमा? इसलिए कि उनको इंतकाम लेना था मुसलमानों से इस सारी शिकस्त का, और इंतकाम तो ले नहीं सके। अब एक उनका बंदा हाथ आया तो अब हम देखो क्या करते हैं। समझ रहे हैं बात? कि अब एक मेले का सा समा था, औरतें बच्चे मर्द सब जमा हुए हैं कि एक तमाशा देखा जाए, और उनके अंदर ये भी है सईद बिन आमिर। अब कहते हैं यही देखें, ये वाकया ना इनके मुसलमान होने का जरिया बना था, इसलिए आपको सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि उस वक्त औरतें बच्चे और ये सब ये चाह रहे थे कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इनको मौत के मुंह में धकेल दिया जाए, और हम अपने बदर के मकतूलीन का बदला लें। जब ये हजूम अपने इस कैदी को लेकर इस मकाम पर पहुंचा, ऐसे नहीं लगता था कि जैसे कोई फिल्म चल रही है कि कैदी को लाया जा रहा है, लोग जमा है और लोग कह रहे हैं कि इसको मौत दो मौत दो। तो ये मकाम उन्होंने पहले से फिक्स किया हुआ था कि यहाँ पे इनको मौत दी जाएगी। तो कहते हैं कि जब सईद बिन आमिर कहते हैं कि जब मैंने खुबैब की तरफ देखा तो वो इतने पुरसकून थे, अपने कत्लगाह की तरफ जा रहे हैं लेकिन इतने पुरसकून थे। औरतें बच्चे चीखो पुकार कर रहे हैं, एक शोर मचा हुआ है, मार दो इसको मार दो इसको। और वो फरमा रहे हैं अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मरने से पहले मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। फिर सईद बिन आमिर ने देखा कि हजरत खुबैब किबला रुख होकर 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, और कहते हैं ये 2 रकतें कैसी थी, इतनी खूबसूरत थी और इतनी मुकम्मल थी। इसके बाद मैंने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुंह करके फरमा रहे हैं खुदा की कसम अगर मुझे ये गुमान ना होता, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम समझोगे कि पता नहीं मैं मौत के डर की वजह से नमाज लंबी कर रहा हूं, तो मैं और लंबी करता। मुझे ये डर है, तुम पता नहीं समझोगे कि डर गया इसलिए लंबी नमाज पढ़ता जा रहा है, इसलिए नहीं मैंने लंबी पढ़ी, वरना मैं और लंबी पढ़ता। फिर कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत खुबैब का जिंदा हालत में मुसला कर दिया गया, जिंदा का, यानी ये लोग उनके जिस्म का एक एक उज़्व एक के बाद एक काट रहे हैं और कह रहे हैं। अबू सुफियान ने उस वक्त ये अल्फाज बोले, क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी जगह यहाँ पे मोहम्मद होता और तुम अपने बाल बच्चों में आराम से बैठे होते? क्या तुम्हें ये पसंद है? एक एक उज़्व काट, और कह रहे हैं क्या तुम्हें ये पसंद है? अब यानी कि इंसान कहना कि हाँ अच्छा होता वो यहाँ पे होते, मैं क्यों उनकी जगह मरूं, हम क्यों अपनी जानें दें भाई इस दीन के लिए, इनका कलमा पढ़ा तो हमारे पर ये आज गुजर रही। और कहते हैं इस हालत में कि उनके जिस्म से खून के धारे बह रहे हैं। जवाब ये था खुदा की कसम मुझे ये पसंद नहीं कि मैं अपने घर वालों में अमन और चैन से रहूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे।
एक कांटा भी। यानी इतनी मोहब्बत थी कि ये मुझे गवारा है कि मैं ऐसे मर जाऊं, लेकिन मेरी जगह पे उनको एक कांटा भी ना चुभे। ये मुझे गवारा नहीं उनको कांटा चुभे। तो कहते हैं फिर सईद बिन आमिर ने देखा लोग फिजा में हाथ हिला हिला के बुलंद आवाज से कह रहे हैं इसको मार दो, इसको मार दो। इसके बाद उन्होंने देखा खुबैब को कि वो आसमान की तरफ नजरें उठाए हुए हैं और अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, इलाही इन सब जालिमों को गिन ले और इन्हें तबाही का मजा चखा और इनमें से किसी एक को भी माफ ना करना। ये कहकर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब इनका जिस्म तलवार और नेजों की जरबों से चूर था और इतने जख्म खा चुके थे कि जिनका गिनना मुमकिन नहीं था। ये वो खुबैब है कि जब इनको उन्होंने अपने घर में कैद किया हुआ था, पहले कैद किया फिर कत्ल के लिए लेकर गए, कैद किया हुआ था। तो उन्होंने कह दिया था कि आपको ये दिन है जिस दिन आपको कत्ल किया जाएगा। तो फरमाया कि मुझे गुस्ल करना है और मुझे उस तरह चाहिए कि मैं अपने गैर जरूरी बाल साफ कर लूं कि मेरी अल्लाह से मुलाकात होनी। सुभान अल्लाह। और गुस्ल से जब फारिग हुए, उन्होंने उस तरह वगैरह दे दिया था, गुस्ल से फारिग हुए बैठे हुए थे कि इतने में वो जो घर की औरत थी उसका एक छोटा सा बच्चा, बेबी होगा कोई, खेलता खेलता उधर आ गया और उस औरत ने क्या देखा कि उनकी गोद में बैठा हुआ है और उनके एक हाथ में उस तरह। तो वो चिल्लाने लगी कि ये क्या, ये तो अब मार देगा, ये तो खुद मरना है इसने, अब मेरे बच्चे को मार देगा। उन्होंने कहा तुम डर रही हो कि मैं इस बच्चे को मार दूंगा? वल्लाही मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये भी नहीं किया कि मैं इसकी गर्दन पे रख के और कहूं कि मुझे जाने दो। ये है मुसलमानों का किरदार। उस औरत ने उसके बाद कहा, ये उस औरत की जुबानी और उसके अल्फाज हैं कि उसने कहा इसके बाद कि अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कोई ऐसा कैदी नहीं देखा जैसा खुबैब था, उससे बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। अल्लाह की कसम एक दिन मैंने उसको देखा, वो अंगूरों का खोशा अपने हाथ में पकड़े हुए खा रहा था। हालांकि उसकी हालत ये थी कि वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और मक्का में तो इन दिनों कोई फल था ही नहीं। कहां से वो काफिर औरत कह रही, ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अंगूर खा रहा है। और फिर वो खुद कहती है वो औरत, ये वो रिस्क था जो अल्लाह ने इसको दिया था। ये पूरे मक्का में कोई फल नहीं था तो ये कहां से अंगूर खा रहा है। सुभान अल्लाह। जब दिलों के ऊपर ताले लग जाए ना तो फिर नहीं मारते। अब इससे देखें हमें कितनी बातें पता चलती हैं। एक तो ये बात कि हमारे दीन के अंदर औरतों और बच्चों, इनोसेंट जो हैं, उनको मारने की कोई इजाजत नहीं। अगर कोई इजाजत होती या कोई रुखसत होती तो ये सहाबी रसूल उस वक्त फायदा उठा सकते थे कि हाँ भाई ये काफिर का बच्चा है, मुझे मारने लगे तो मैं इनका बच्चा मारूंगा, अदले का बदला। लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। और आज मुसलमान ना मुसलमान को छोड़ता है ना काफिर को, इसलिए कि ये मुसलमान तो क्या, ये तो इंसानियत से भी गिर चुकी है कि यानी किसी को नहीं। जबकि हमारा मजहब ये कह रहा है, हालांकि उनके पास सारे एक्सक्यूजेस थे कि भाई ये तो दुश्मन के बच्चा है, ये खुद भी बड़ा होकर काफिर ही बनेगा, लिहाजा मैं इसको मार देता हूं, कुछ भी कह सकते थे, 101 एक्सक्यूजेस थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज हम लोगों के तरीके देखें क्या। दूसरा ये पता चलता है कि कोई कैद के बाद किसी को अगर कत्ल किया जाना हो तो वो 2 रकत नमाज पढ़े, ये इन सहाबी की सुन्नत। तो और तीसरे कि वो अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। जब ये पता चला तो गुस्ल किया, तहारत की कि मेरी अल्लाह से मुलाकात होने वाली। ये नहीं कि हाय अल्लाह मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे घर वालों का क्या होगा, नहीं, उनके दिमाग में क्या है, अल्लाह से मुलाकात। और सहाबा कराम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी पता चलती है कि कैसी मोहब्बत है कि एक एक कोस काटा जा रहा है। उस वक्त तो लोग किस किस तरह की बातें करने लगते हैं, सब वफादारियां पता चल जाती हैं कि किसके साथ किसकी वफादारी। लेकिन इनका हाल क्या है कि उस वक्त भी
जुबान से क्या निकल रहा है कि नहीं, उनको कांटा भी चुभ जाए ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, मेरा मुसला हो जाए कोई बात नहीं। मैं इसी में आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, कि बनु अशजाज का एक शख्स था, नाम था जाहिर बिन हराम, मदीना से बाहर का रहने वाला था, देहाती था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी गांव से आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां की सौगातें लेकर आता था, कभी सत्तू, कभी शहद, कभी और ताजा सब्जियां वगैरह। तो जब वो वापस जाने लगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जो है ना शहर के अपने तोहफे देते और फरमाते थे कि ये जाहिर जो है ये हमारा देहाती दोस्त है और हम इसके शहरी दोस्त हैं। और फिर जब वो आता था तो आके बाजार में खड़ा हो जाता था, अपनी चीजें वगैरह बेचता था। एक दफा वो अपनी चीजें बेच रहा था इसी तरह, जो लाया हुआ था, मदीना के बाजार में खड़ा था, उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, आपने उसको देखा ये चीजें बेच रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और पीछे से जाकर उसकी आंखों पर अपने हाथ मुबारक रख दिए, जैसे हम करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें देखें कैसी हैं। कोई बंदा दुनिया में आज अपने आप को बड़ा समझ रहा तो ऐसे करेगा किसी को, वो भी किसी देहाती को, ये क्या उजड़, ये क्या ये चीजें, तो उनसे डिस्टेंस पे रहते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा, कितना शफीक बर्ताव था अपने साथियों के साथ। अच्छा, अब उसने अपनी आंखों पे जब किसी के हाथ महसूस किए तो परेशान हो गया, बोला ये कौन है, किसने मेरी आंखों पे हाथ रखे हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की नजाकत और उससे ना खुशबू से उसने पहचान लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कितनी बड़ी शख्सियत मेरे पीछे खड़ी है। बस फिर क्या था, उसने मौका गनीमत जाना और अपनी पुश्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ मिलाना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत के लहजे में जो हाजिरीन थे उनसे कहा, लोगों कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। तो उसने जवाब में कहा, अल्लाह के रसूल मेरे जैसे काले देहाती को कौन खरीदेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है ये तो सरासर घाटे का सौदा होगा, कौन मुझे लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखे, फरमाते हैं मेरे दोस्त ऐसा ना कहो, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं है, तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, तुम अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हो। मैं कहती हूँ अल्लाह, हम भी सिर्फ ये कहते हैं हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, बस, और हमारे पास कुछ नहीं। और दूसरे जो सहाबी थे जो बच गए थे उनका नाम था जैद बिन दसिना, उनके बारे में भी अभी हम देखते हैं। मगर इन्होंने ये हजरत हुबैब के अल्फाज हैं। इसके बाद अबू सुफियान ने हुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आती है कि तुम्हारे बदले मोहम्मद हमारे पास होते, हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहलो अयाल में होते। उन्होंने कहा, वल्लाही मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने बाल बच्चों में हूं और इसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां आप हो वहां कोई कांटा भी चुभ जाता और वो आपको तकलीफ देता। अल्लाह अकबर। फिर हारिस बिन आमिर के बेटे ने उन्हें अपने बाप के बदले कत्ल कर दिया। बाकी रहा जैद बिन दसिना का मामला, तो उन्होंने गज़वा बदर में उमैया बिन खल्फ को कत्ल किया था। आपको याद है उमैया कौन था? बिलाल का आका जो उनको बहुत तकलीफ देता था, तो उसको कैद करने वाले कौन थे? ये जैद बिन दसिना, और ये लेकर जा रहे थे, आपको याद है। फिर हमने बताया था कि हज़रत बिलाल जो थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा था कि यहाँ तो आज मैं रहूंगा या ये रहेगा, और फिर उन्होंने अंसार को भी बुला लिया, फिर सबने मार मार के उसको मार दिया था उमैया बिन खल्फ को। तो उसका बेटा जो था वो इंतकाम की आग में जल रहा था। सफवान बिन उमैया की याद है वो बात, काबा के पास बैठे हुए जो प्लानिंग कर रहे थे दो लोग, उनमें एक ये भी था। इसके बेटे सफवान बिन उमैया ने खरीद कर अपने बाप के बदले कत्ल किया। बाज कुतुब में अबू सुफियान और हजरत खुबैब की जो मजकूरा वाला गुफ्तगू है, जो ऊपर की ये सारी बातें है ना, कि उन्होंने ये कहा कि क्या तुम्हें ये पसंद है, बाज किताबों में ये हजरत जैद बिन दसिना की तरफ मंसूब कर दी गई है कि उनकी और अबू सुफियान की ये कन्वर्सेशन हुई थी। हादसे के बाद कुरैश ने बाज आदमी भेजे कि हजरत आसिल के जिस्म का कोई टुकड़ा ले आए, लेकिन अल्लाह ने भेड़ों का झुंड भेज दिया जिन्होंने उनकी हिफाजत फरमाई। हजरत आसिम ने अल्लाह से ये अहद कर रखा था कि उनकी जिंदगी में ना उन्हें कोई मुशरिक छुएगा और ना वो किसी मुशरिक को छुएंगे। अल्लाह ने वफात के बाद भी इस अहद का पास रखा। अल्लाह ताला ने उनके साथ
वादे को निभाया और अल्लाह ताला ने उनके जिस्म मुबारक की भी हिफाजत फरमाई। अब हम अगला जो बहुत बड़ा एक यानी वाकया हुआ उसको देखेंगे। ये वाकया इस कदर ज्यादा तकलीफ दे था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसको हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ते हैं। पहले तो ये समझ ले माउना क्या है। ये बनु आमिर और बनु सुलैम के हर्रा के दरमियान एक कुआं था, उसका नाम था माउना, और इसके इर्द गिर्द के इलाके को बैर माउना कहा जाता था। हादसा रजी ही के जमाने में एक और अलमिया पेश आया जो रजी से भी ज्यादा अलमनाक था, यानी पूरी सीरत में आपको इतना खौफनाक वाकया नहीं मिलता। उसका खुलासा यह है कि अबू बरा बिन आमिर बिन मालिक जो मुलाइब असिन्ना यानी खेलने वाला असिन्ना से नेजों से इसके लकब से मशहूर था, मदीना खिदमत नबी में हाजिर हुआ। अच्छा, ये आदमी था, सरदार था, और ये नजद से आया था। नजद एक दूर का इलाका था, ये हिजाज का इलाका जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजद का इलाका इससे बहुत ज्यादा बड़ा इलाका था। वहां से ये आदमी आया, मदीना में कुछ अरसा रहा, इस्लाम से बहुत इम्प्रेस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दावत भी दी इस्लाम की, लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। कहता था मुझे पसंद तो है लेकिन मैं कबूल नहीं कर सकता। लेकिन दूरी भी इख्तियार नहीं की, इनकार भी नहीं ऐसा किया, और ये तवक्को जाहिर की कि अगर अहले नजद के पास तबलीग के लिए आदमी भेज दिए जाएं तो वो इस्लाम कबूल कर ले। अब उसने क्या रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप ऐसा करें कि मेरे साथ लोगों को भेजें, ठीक है मैं तो नहीं इस्लाम लेकर आता लेकिन मेरे साथ लोगों को भेजें, वो वहां पे इस्लाम की तबलीग करें। और उसने ये भी कहा कि वो मेरी पनाह में होंगे, यानी मैं उनको अमान देता हूं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब एक बंदे की सिक्योरिटी वॉज इट इनफ? नहीं, इनफ थी इसलिए क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, एक सरदार ने अगर अमान दे दिया पूरे कबीले की तरफ से अमान है, और उनके जो हलीफ है उनकी तरफ से भी अमान में आ गया, क्योंकि एक सरदार ने बात की थी ना, उसने जुबान दी, उसने कहा मैं अपनी जुबान देता हूं, मैं ये आपको, और वो वाकई सच्चा था कि उसने अपनी जुबान दी और उसके ऊपर उसने पूरा उतरा दी। तो उसने कहा कि यानी एक सिक्योरिटी की गारंटी दे दी। अब और क्या चाहिए था, ये सहाबा कराम जाएं वहां पे तबलीग करें। नजद इतना बड़ा इलाका था, अगर वहां इस्लाम फैल गया तो वो तो पूरा यहाँ का ज्योग्राफी बदल जाएगी ना, कहां का इस्लाम चला जाएगा। तो ये इस चीज का एक जाहिर लालच भी होता था सहाबा को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कि आगे तक काम फैल जाए। तो जब उसने ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरा सहाबा में से 70 मुबल्लिगीन भेज दिए, यानी 70 लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। और किस वजह से 70 को भेजा था कि ये इतना बड़ा इलाका, सारे इलाके में फैल जाएंगे, तबलीग करेंगे। और ये भी वो लोग थे जो इतने माहिर हुफ्फाज कारी मुबल्लिगीन, और आपको पता है एक एक बंदे को तैयार करना कितना मुश्किल होता है, एक हाफिज तैयार करना जिनके घर में कोई हो तो उनको पता हो कितना मुश्किल काम है। फिर दीन का इल्म सीख कर और उसको आगे पहुंचाने की सलाहियत होना, ये भी कम लोगों के अंदर होता है। फिर इतने प्यारे कुर्रा, और ये असहाबे सुफ़ा में से हैं, ये भी असहाबे सुफ़ा में से हैं। हजरत अनस से मरवी है कि कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे हमारे साथ अपने कुछ लोगों को भेज दें जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हमरा अंसार के 70 आदमियों को रवाना कर दिया। उन लोगों को कारी कहा जाता था, इतने ज्यादा वो कुरान के माहिर थे। इन कारियों में कहते हैं मेरे मामू हजरत हराम बिन मलहान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शामिल थे। उन लोगों की जिंदगी कैसी थी, सिर्फ इसलिए ये आपको बात बता रहे हैं कि ये कैसे लोग थे जो भेजे गए। उन लोगों की जिंदगी का मामूल इस तरह था कि रात को कुरान पढ़ा करते थे, रात को तदब्बुर किया करते थे, इल्म सीखते थे, जबकि दिन को मस्जिद के लिए पानी भरते थे, लकड़ियां इकट्ठी करके भेजते थे, बेचते थे, और जो रकम हासिल होती थी उससे उसके बदले सुफ़ा वालों और फकीरों के लिए खाना खरीदते थे। ऐसे ये लोग थे, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह के रसूल ने तबलीग के लिए भेजा था, पूरा एक जमात बना था। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, इन्होंने, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सीख के, आप समझ लें एक ऐसे, हाँ फसल तैयार हो गई वाली बात है ना, कि ये छोटे छोटे पौधे नहीं, अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में, तरबियत में, तालीम में ये अब बड़े हो गए थे।
अब ये 70 सहाबा कम नहीं है, ये उस जमाने में, आज भी खैर बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उस जमाने में तो एक एक बंदा कीमती था। क्या आबादी थी मुसलमानों की, हाँ, कितने थोड़े से थे, उनमें 70 आपके बेस्ट मैन, 70 समझ ले स्कॉलर्स, 70 स्कॉलर्स उस जमाने के। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे देखते हैं, यहां से बुक में से पढ़ते हैं। उन्होंने बहरे मऊना पर पड़ाव डाला और हजरत हराम बिन मलहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लेटर था, खत था, वो लेकर अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए। ये एक कबीले का सरदार था। तो हराम बिन मलहान जो थे एज एन एम्बेसडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेके उसके पास गए। अस्तगफिरुल्लाह। उसने खत पढ़ने की बजाय, अब खत में क्या लिखा था कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, तबलीग की घर से आए हैं, ये सब, हालांकि उसको पता था कि इसने जो है अबू बर्रा आमिर, इसने पनाह दी हुई है इनको, अमान दी हुई है इनको। इसके बावजूद उसने इशारा किया, इशारे वही जानते होंगे क्या इशारा, किस तरह से इशारा उसने किया एक आदमी को कि इसका काम तमाम कर दो। उसने खत पढ़ने की बजाय एक आदमी को हुक्म दिया और उसने हजरत हराम बिन मलहान को पीछे से इस तरह नेजा मारा कि वो आर पार हो गया, ऐसे पीछे से मारा कमर के अंदर के सीने के आगे से निकल आया। और हजरत हराम बिन मलहान, इनके आखिरी अल्फाज क्या थे? अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। यही चीज एक आदमी ने देखी तो उसने कहा ये कैसी बात है, ये मार रहा कह रहा मैं कामयाब हो गया, इसको कौन सी कामयाबी मिल गई? और उसने वहां से आके फिर इस्लाम को जाना और वो मुसलमान हुआ। ये कैसा दीन है जिसका एक मरने वाला कह रहा है मैं कामयाब हो गया? क्या कामयाबी मिली? ये शहादत कामयाब। उनकी तो मंजिलें कुछ और ही थी ना। और ये भी रिवायात में आता है कि शहादत पाकर वो अपने रब से कहने लगे, ए हमारे मौला, हमारे बारे में हमारे नबी को आगाह कर देना कि हमने आपसे मुलाकात कर ली और हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, और अल्लाह हमसे खुश हो गया। ये भी आएगी अभी बात और भी इसमें। तो उनके अल्फाज क्या थे? फुस्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को इसकी इत्तला दी थी। तो फिर फौरन ही इस अल्लाह के दुश्मन ने बाकी सहाबा पर हमले के लिए बनु आमिर को आवाज दी, मगर अबू बर्रा की पनाह के पेश नजर उन्होंने उसकी आवाज पर कान ना धरे। अब इसने क्या किया, बजाय इसके कि आराम से अब बैठता, इसने क्या किया, इतना दुश्मने खुदा था आमिर बिन तुफैल कि इसने कहा कि अब एक से तो जी नहीं भरा, अब जो बाकी हैं इनके साथी, इनको मारने के लिए भी बाकी कबीलों को कहा कि तुम साथ मिलो और चलो हम इनको मारते। तो कुछ कबाइल ने तो कहा कि नहीं, उसने इनको पनाह दी हुई है अबू बर्रा ने, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं जाके ये काम करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसकी बात पे लब्बैक कहा, लिहाजा उसने बनु सुलैम को आवाज दी और इसकी चंद शाखों राल, जकवान और उसैया ने आकर सहाबा कराम का मुहासरा कर दिया और सबको तहे देख कर डाला, यानी सबको कत्ल कर दिया, सबको शहीद कर दिया। वो सारे मिलके आए। अब आप देखें, ना तो ये बेचारे लड़ने के लिए आए हैं, ना उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। कहा जाता है कि कहां ये इतने थोड़े से लोग थे और वो कहां 400-500 का तकरीबन लश्कर एक आ गया और उन्होंने आकर इनको घेर लिया और इनको शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ काब बिन जईद और अमर बिन उमैया जमरी बच गए। काब बिन जईद जख्मी थे, उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया, चुनाचे वो शुहदा के दरमियान से उठा लिए गए, फिर जिंदा रहे और गज़वा खंदक में शहीद हुए। यानी काब बिन जईद का क्या हुआ था कि ये जख्मी होके बेहोश हो गए, उनके ऊपर लाशें गिरती गई और उन्होंने समझा कि ये भी मर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा थे, जिसको अल्लाह ने रखना। और फिर ये तो बाद में गज़वा खंदक में जाके शहीद हुए। और अमर बिन उमैया जमरी और मुंजिर बिन उकबा, ये दोनों मुंजिर बिन उकबा के साथ ऊंट चरा रहे थे, और बाल जगह पे आता है कि ये पानी लेने गए हुए थे। अब कुछ लोग हैं जैसे पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं लश्कर के लिए, तो अमर बिन उमैया और मुंजिर, ये लोग जब पानी लेने निकले हैं, जब वापस आ रहे तो उन्होंने देखा
कि जिस जगह पे सहाबा ने पड़ाव किया हुआ था बईर मऊना पे, उसके ऊपर वल्चर्स फिर रहे हैं। इतने परिंदे हैं जो ऊपर घूम रहे हैं, जैसे होता है ना कहीं खून हो या बॉडीज है या कुछ है, तो वहां पे ये परिंदे घूम रहे थे। तो वो समझ गए कि कोई मसला है। अब उन्होंने कहा कि क्या करें। ऐसे में अमर ने कहा कि हमें वापस चले जाना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके इतला दें। मुंजर ने कहा कि नहीं, जो मेरे साथियों के साथ हुआ मैं उस दर्जे से क्यों महरूम रहूं, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, हमें चलना चाहिए वहां पे और हम जाएं और जाके देखें। तो दोनों ये वहां पहुंचे और वहां पे देखा कि यहाँ पे तो ये हो चुका है। अब वो जो काफिर थे उन्होंने इन दोनों को भी पकड़ लिया। अब देखें, एक कह रहे हैं, अमर कह रहे हैं कि वापस जाना चाहिए और मुंजर कह रहे हैं कि मैं शहादत के दर्जे से क्यों पीछे हूं। जब वहां पहुंचे, अल्लाह ने जिसकी जैसी नीयत थी वैसे ही कर दिया। मुंजर जो थे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अमर जो थे उनको उसके जो सरदार था उनका, उसने कहा कि मैंने किसी को आजाद करना ही था, मन्नत मानी भी थी मेरी माँ ने, चलो इनको आजाद कर दो, ये चला गया। अब ये देखो यहाँ पे, देखो जिसकी जैसी नीयत। अच्छा, नहीं उनकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन देखिए जिसके जो जो चाहता था ना उसी तरह उसको वो मिल गया। एक शहादत के मर्तबे चाहता था उनको वो मिल गया, दूसरे की नीयत नहीं बुरी थी, मगर उन्होंने चाहा था कि वापस चले जाएं। तो देखिए उस वक्त वापस जा सकते थे और अगर सोचते कि वहां जाएंगे तो पता नहीं हम मर जाएंगे, नहीं, मौत इस चीज से नहीं आनी थी। वो देखो उनके नरगे में जाके भी जिसको अल्लाह ने जिंदगी देनी थी वो बच के आ गए। तो ये ऐसे थे कि इनका ये दोनों यानी ऊंट चरा रहे थे, उन्होंने जाए वारदात पर परिंदों को मुंडलाते देखा तो हादसे की नौयत समझ गए। चुनाचे वहां पहुंचकर मुंजर ने तो लड़ते भिड़ते शहादत हासिल कर ली और अमर बिन उमैया कैद कर लिए गए। जब आमिर बिन तुफैल को बताया गया कि उनका ताल्लुक कबीला मुजर से है, तो आमिर ने उनकी पेशानी के बाल कटवा के अपनी माँ की तरफ से, जिस पर एक गर्दन आजाद करने की नजर थी, उन्हें आजाद कर दी कि मेरी माँ ने एक गर्दन आजाद करनी थी, हमने मन्नत मांगनी हुई थी, इसके बाल काट और इसको छोड़ दिया। अब हजरत अमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मदीना पलटे। अब जब वापस आ रहे हैं तो ये जा रहे हैं मदीना की तरफ, और मदीना से दो लोग, जो ये आमिर बिन तुफैल जिसने ये सारा मैसेकर किया है, उसके कबीले के दो लोग आ रहे हैं वापस आमिर बिन तुफैल की तरफ जा रहे हैं, मदीना से आ रहे हैं। उनको कोई नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, कि वो कौन से टेलीफोन या वो थे कि किसी को बता देंगे इतना। अच्छा, अब वो जब वापस जा रहे हैं तो उस वक्त ये ककरा के मकाम के ऊपर ये मिलते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं हम, हजरत अमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना पलटे, रास्ते में ककरा नामी एक मुकाम पर पहुंचे तो बनु किलाब के दो आदमी मिले। हजरत अमर ने इन्हें दुश्मन का आदमी समझकर कत्ल कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को इस तरह से शहीद किया, ये उस कबीले के, तो इनका भी कोई ताल्लुक ऐसे ही है। तो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। बाद में जब उनका सामान देखा तो उनके सामान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी हुई थी उनको, वो अमान मिली। तो ये फिर बड़े पशेमान हुए। हालांकि इनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान देते थे ना उस जमाने में। चुनाचे जब मदीना पहुंचकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी तो आपने फरमाया, तुमने ऐसे दो आदमी कत्ल किए जिनकी दियत अब मुझे देनी होगी। यानी कि जब मैंने इनको अमान दी हुई थी, हालांकि उन्होंने कितने सारे इनके मार दिए, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मैंने अमान दी हुई थी तो मैं अब इनकी दियत अदा करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजी और बई मऊना की इन हादसात से सख्त रंजो अलम पहुंचा। आप सोचिए कि मैं खुद में सोचती हूँ तो मुझे अपने स्टूडेंट्स इतने प्यारे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनको समझ लें कि जैसे छोटे पौधे हैं, उनसे हिफाजत कर करके कैसे इनको पाला और कैसे इनको इस मकाम तक, और उनके सामने ये पता चलता है कि इतने सारे, जैसे फसल कट गई है, इतने सारे एक वक्त में शहीद हो गए कि एक ही रात में ये दोनों हाथ से एक ही महीने यानी सफर 4 हिजरी में पेश आया, और कहा जाता है दोनों वाकयात की खबर आपको एक ही रात पहुंची कि वहां पे इतने शहीद हो गए। और वहां पे आपने इन कातिलों पर 30 रोज तक नमाज फजर में, यहाँ पे नमाज फजर आता है लेकिन बहुत सारी रिवायत में आता है कि 5 नमाजों में बद्दुआ की कनूत नाजला पड़ी। कनूत नाजला क्या होती है? आखिरी रकत में रुकू से उठ के हाथ उठा के अल्लाह से इनके लिए बद्दुआ।
तो ये मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते तो उसके बाद बनी सुलाइम, राल, जकवान और सैया के कबीलों पर बदुआ करते, और जो लोग आपके पीछे होते वो आमीन कहते। सही बुखारी में भी इसका जिक्र है कि बनु लहयान का भी जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी बदुआ की थी, जो रजी के वाक़े में वो थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख और गम हुआ था, इसका अंदाजा आपकी कुनूत से पता चलता है कि कुनूत नाज़िला जो आपने पढ़ी थी उससे पता चलता है। उसके अब आप जाके अगर अल्फाज देखिए तो जबरदस्त बात है उसके अंदर कि कैसे अल्लाह ताला इनसे इंतकाम लेने के लिए। और मस्जिद नबी के दरो दीवार आमीन कहती हुई आहों और सिसकियों से किस कदर रंजीदा और गमनाक होते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे रोते रहे। हत्ता कि फिर अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी हैं वो कि अल्लाह ताला ने आयात उतारी जिनका जिक्र यहाँ पे है, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन शुहदा की तरफ से ये पैगाम नाजिल किया। ये आयतें उतरी थी, फिर बाद में ये मनसूख हो गई, किरात से उठा ली गई। ये आयात उतरी थी जिसमें ये था कि हमारी कौम की तरफ ये बात पहुंचा दें कि हम अपने रब से मिले हैं तो वो हमसे राजी और हम उससे राजी। यानी शुहदा ने तमन्ना की अल्लाह के पास कि या अल्लाह हमारी कौम को ये बात पहुंचा दे कि हम अपने रब से मिले हैं, वो हमसे राजी और हम उससे राजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फिर बताया कि तुम्हारे भाई शहीद कर दिए गए और वो जन्नत में पहुंच के कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबियना अन्ना कद लकीना का वरदीना अनका वरदीत अन्ना। ए हमारे अल्लाह, हमारे नबी को हमारा ये पैगाम पहुंचा दे कि हमने तेरे से मुलाकात कर ली है, हमारी तेरे से मुलाकात हो गई है और हम तुझसे राजी हो गए और तू हमसे राजी हो। ये पैगाम हमारे नबी तक पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, तब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला छोड़ी थी। 1 महीना तक कुनूत नाज़िला की थी। और ये हमें सुन्नत से मिलता है कि जब भी कोई मुसीबत हो, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए तो कुनूत नाज़िला की जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।